Welcome to Lukman IAS. Study General Studies with Lukman IAS for building comprehensive knowledge. GS paper 2 and 4 will be taken by S. Ansari and other papers will be covered by renowned faculties. Live classes are as effective as offline classes. The classes are highly interactive in nature. Your doubts and queries will be addressed and there will be dictation of notes. In the last 10 years, Lukman IAS has set up a niche in the field of UPSC guidance. हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा जोशी है। मुझे इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में रैंक 19 प्राप्त हुआ है। ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था यूपीएससी में और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट मेडिकल साइंस है। एक थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मैं पिथौरागढ़ से आती हूं उत्तराखंड में। अपनी क्लास 10th तक की एजुकेशन मैंने पिथौरागढ़ से ही कंप्लीट करी है और फिर क्लास 12th देहरादून में किया है। मैंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से 2018 में MBBS कंप्लीट किया और 1 साल की इंटर्नशिप करी गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज में, जो 2019 में फ़िनिश हुई और तभी से मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरी जो 3 साल की जर्नी है उसमें जो भी मेरे लर्निंग्स हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, वो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो प्रीलिम्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज़ मेरा 3 साल का प्रीलिम्स का एक्सपीरियंस है। तो अगर आप इस वीडियो को देखें तो मुझे लगता है कि शायद मेरी जो भी जर्नी है, एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे आप कुछ सीख सकते हैं और अपने कन्वीनियंस के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के हिसाब से कुछ पॉइंट्स को अपनी प्रिपरेशन में यूज़ भी कर सकते हैं। अपनी प्रीलिम्स की अगर जर्नी की बात करूं 3 साल की, तो जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था वो 2019 में था। उसमें काफ़ी लिमिटेड प्रिपरेशन के साथ मैंने वो अटैम्प्ट दिया और उसमें मेरा प्रीलिम्स का स्कोर क्लोज टू 83 मार्क्स था। इन माई सेकेंड अटैम्प्ट मुझे लगा कि मुझे शायद प्रॉबेबली एक कोचिंग की ज़रूरत है एंड कि एक साइंस बैकग्राउंड से आते हैं तो ह्यूमैनिटीज़ की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो मैंने एक इंस्टीट्यूट में फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन किया, बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक इट वॉजेंट वेरी इफेक्टिव और मेरा जो प्रीलिम्स का स्कोर था इन माई सेकेंड अटैम्प्ट इन 2020 वो 72 मार्क्स था एंड द कट ऑफ वॉज समवेयर अराउंड 92 मार्क्स। तो आई थिंक दिस वॉज ऑल्सो अ लर्निंग फॉर ऑल द लिसनर्स कि कोचिंग कैन नॉट बी अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ योर preparation. Most of the preparation for civil services exam has to be self-study and probably a guidance where somebody can help you streamline your preparation from time to time. For me, my mentor Anupam sir did that. In my third attempt, if I talk about this year, then I have a score of 100 marks. So it has been an improvement of close to 28 marks from my previous attempt. And also it is close to 13 marks above the cutoff for this year. So I think that if in gist I can explain what was going wrong in my prelims preparation. So that would be that probably I wasn't using the right resources or maybe running after a lot of resources. So before starting a detailed video on the preparation for prelims exam, if I can give you 2 to 3 broad pointers that you should keep in mind for your prelims, that would involve that you should have limited and right resources while you are preparing for your prelims exam. Secondly, it is important to limit resources and also do the multiple revisions of the similar resources. 5 to 7 revisions are adequate enough before you enter the exam hall. And the third most important thing for prelims is to analyze the mock papers that you attempt. You can do it by yourself. After you solve a particular paper, I have given a detailed description of the same in the video in the upcoming section. Otherwise, you can also do it with the help of a mentor. Whatever is convenient to you, you can choose it as per your strengths and weaknesses and decide on how you would want to proceed with it. But the most important keyword that I would want to say is that prelims will not be only about hard work. You will have to be smart and strategize your preparation accordingly so that you are able to improve your scores and also be able to clear the cutoff with an effective margin. तो अगर प्रीलिम्स में हम बात करें सोर्सेज की, तो मैं एक ब्रीफ आइडिया दे दूं। वैसे तो काफ़ी पुराने टॉपर वीडियोस अवेलेबल हैं जिन्होंने सोर्सेज डिस्क्राइब किया है, पर अगर मैं अपने सोर्सेज बताऊं तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है उसको रेफ़र किया था। और जो आपका एंशिएंट एंड मिडीवल हिस्ट्री का पोर्शन रहता है उसमें मैंने ओल्ड NCERTs फॉलो करी है बाय RS शर्मा एंड सतीश चंद्रा।
उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है उसमें नितिन सिंघानिया की बुक जो है उसको मैंने फॉलो किया। उस बुक में आपको पूरी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्टेड चैप्टर्स आपने पढ़ने हैं। जैसे कि जो फर्स्ट चैप्टर रहता है जो फाइन आर्ट्स की बुक से काफ़ी ज़्यादा कोरिलेट करता है, तो अगर आप फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आप उस बुक से भी उस चैप्टर को रेफ़र कर सकते हैं। तो सिलेक्टिवली आप पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करके ये देखें कि किस तरीके के क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आप नितिन सिंघानिया बुक को रेफ़र करें। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में मैंने सिर्फ लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है उसको रेफ़र किया था और उसी के मल्टीपल रिविजन्स किए। इकोनॉमी जो दूसरा सब्जेक्ट रहता है प्रीलिम्स में, उसमें अगेन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो स्टैटिक पोर्शन के लिए तो मैंने अनुपम सर के स्मार्ट वर्क लैब्स के जो इकोनॉमी के नोट्स हैं उनको रेफ़र किया था। साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट के लिए करंट अफेयर्स मटेरियल जो है वो मैंने विजन आईएएस का मटेरियल यूज़ किया है। इन्वायरमेंट के लिए अगर हम स्पेसिफिकली बात करें स्टैटिक पोर्शन की, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे क्वेश्चंस स्टैटिक से भी आते हैं, तो वो एक बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने शंकर आईएएस की जो बुक आती है इन्वायरमेंट की उसको रेफ़र किया था। अगेन नितिन सिंघानिया की तरह इस बुक में भी यही है कि आपको इन एंड आउट पूरी बुक नहीं पढ़नी है। जो भी टॉपिक्स आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट हैं या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हैं, स्पेशली जो लास्ट के चैप्टर्स हैं, जिस तरीके से क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर अदर इंटरनेशनल कमिटीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस, तो उन टॉपिक्स पे आपने ज़्यादा फोकस करना है रादर देन कि आप पूरा चैप्टर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक पूरी बुक को पढ़ें। उसके अलावा ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में जो क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज़ हैं मैंने उन्हीं को रेफ़र किया था। अगेन फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू 11th एंड 12th में जो आपकी फिज़िकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है जो इंडियन है और जो वर्ल्ड फिज़िकल ज्योग्राफी है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन ज्योग्राफी के पोर्शन से। तो जब भी आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करें तो ध्यान रखें कि आप उस बुक पे ज़्यादा फोकस दें। जहाँ पे भी करंट अफेयर्स का रेलेवेंस है या जो भी करंट अफेयर्स मटेरियल है, तो उसके लिए मैंने विजन आईएएस की मंथली मैगजीन्स को फॉलो किया है और उसको सप्लीमेंट किया प्रीलिम्स से पहले जो PT 365 का जो विजन आईएएस का मटेरियल आता है, बिकॉज़ दोनों का कंटेंट सेम ही रहता है, तो मुझे लगा कि एक ही मैगज़ीन को फॉलो करना ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट सोर्सेज के बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है अपनी। तो प्रीलिम्स की जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, एक बार आपने अपने ये सोर्सेज डिसाइड कर लिए हैं या फिर आप इस सोर्स को रेफ़र करना चाहते हैं या किसी और सोर्स को, तो आप एक अपने सोर्सेज फाइनलाइज कर लें और उसके बाद ही प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट करें तो आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अगर हम फॉर एग्जांपल हिस्ट्री लें, तो अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी चैप्टर्स हैं आपने एक बार में आप उन्हें फिनिश करें और उसका एक सेक्शनल टेस्ट अटैम्प्ट करें रादर देन कि आप कोई डायरेक्ट एक फुल लेंथ टेस्ट के लिए जाएं। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप एक सेक्शनल पेपर को उसमें अटैम्प्ट करें। जब भी आप सेक्शनल पेपर अटैम्प्ट करें उसके बाद उस पेपर को एनालाइज करने की कोशिश करें कि उसमें ऐसी कौन सी मिस्टेक्स थी जो आपने कमिट करी हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्टली जो जैसे मैंने स्पेक्ट्रम रेफ़र किया था, तो ऐसा टेस्ट में होता था कि जो क्वेश्चन डायरेक्टली अगर स्पेक्ट्रम से टेस्ट पेपर में आया है और वो क्वेश्चन गलत है, तो उस तरीके के क्वेश्चंस पे आपने ज़्यादा एम्फेसिस करना है कि जो क्वेश्चन आपकी बुक से डायरेक्ट है वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो एग्ज़ाम में। दूसरी चीज़, टेस्ट पेपर्स साइमल्टेनियसली सॉल्व जब आप करेंगे सेक्शनल टेस्ट के साथ, उसका ये एडवांटेज होगा कि वो आपको एक आइडिया देगा कि आपने कितना थॉरोली अपने सब्जेक्ट को समझ लिया है, कौन कौन से एरियाज़ हैं जो आपको अभी भी नहीं समझ आए हैं। तो उस तरीके से आप अपने पेपर्स को या फिर अपनी प्रेपरेशन को स्ट्रीमलाइन करें। जब भी आप किसी बुक को पढ़ते हैं, स्पेशली जो लोग घर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी काफ़ी अपना टाइम घर से प्रिपेयर किया है, तो अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो उसमें इम्पॉर्टेंट है कि आजकल तो बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप एक सिंपल जो भी टॉपिक का नाम है उसके पीछे UPSC डाल के एक गूगल सर्च करें या फिर यूट्यूब पे सर्च करें, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इनफैक्ट काफ़ी शॉर्ट वीडियोस 2 to 3 मिनट्स 10 मिनट्स के होते हैं, जिस पे आपको कोई भी टॉपिक जो हो वो आपको मिल सकता है और आप उस टॉपिक को वहाँ से समझ सकते हैं। ऑल्सो एक चीज़ जो मैं बता रही थी कि सेक्शनल टेस्ट आपने पेपर्स अटैम्प्ट करने हैं, तो इसमें एक और स्ट्रैटेजी जो मैंने इनकॉर्पोरेट करी कि आप जब पेपर करते हैं तो आप 2 तरीके से 2 सेट्स ऑफ पेपर करेंगे। जब आप पढ़ रहे हैं किसी सब्जेक्ट को तो आप साइमल्टेनियसली उसके साथ ही एक टेस्ट पेपर उठा लें। मैंने विजन आईएएस का टेस्ट पेपर जो उसके सेक्शनल टेस्ट थे उनको यूज़ किया है, वो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ करते रहें
और एक दूसरा टेस्ट सीरीज़ ले लें जिसको आप एक एग्ज़ाम के फॉर्मेट में या फिर एग्ज़ाम पैटर्न में प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो अगर आप 15 डेज़ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप 15 डेज़ डेडिकेटेडली साइमल्टेनियसली चैप्टर्स जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे उसके साथ ही आप अपने टेस्ट पेपर्स में से क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, और एंड में जाके जब 15 डेज़ जो 16th डे है जिस पे आपने टेस्ट अपना असाइन किया है उस दिन आप एक फाइनल टेस्ट सीरीज़ कर लें। तो जो 2 टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ उसमें जो डेली बेसिस पे जो मैं टेस्ट कर रही थी सब्जेक्ट के साथ वो मैंने विजन IAS का यूज़ किया था, और जो एग्ज़ाम फॉर्मेट में जिस पेपर को मैं यूज़ कर रही थी उसमें मैंने स्मार्ट वर्क लैब्स की जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है और उसका टेस्ट पेपर्स को मैंने यूज़ किया। जो टेस्ट पेपर्स हैं उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी कि कई बार ये देखते हैं हम कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा मॉडल आंसर्स के पीछे भागते हैं कि मॉडल आंसर बहुत अच्छा होना चाहिए या फिर उसके हम अलग से नोट्स बना लें। यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट थी। मैंने ज़्यादा मॉडल आंसर्स को ना रेफ़र करते हुए इस बात पे ज़्यादा फोकस रखा कि जो क्वेश्चंस डायरेक्टली बुक से हैं, बिकॉज आप कोई भी मार्केट में अवेलेबल टेस्ट पेपर्स अगर सॉल्व करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस का जो भी कॉन्टेक्स्ट है या फिर जो भी थीम है वो बुक में ही दिया होता है। तो आप वापस से उसी बुक को पढ़ें, बिकॉज इसके 2 एडवांटेजेस हैं। अगर आप सेम बुक को पढ़ रहे हैं तो आप एंड में एक तो पिक्टोग्राफिक मेमोरी आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, प्लस आप उस चीज़ का मल्टीपल रिवीजन कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप बुक रेफ़र करेंगे प्लस आपके पास एडिशनल नोट्स होंगे तो वो एंड में बहुत ज़्यादा बल्की हो जाता है और पढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप उसी को अपनी बुक में हाईलाइट कर लें, कोई बॉक्स बना लें या फिर एक अलग से अगर कोई एडिशनल पॉइंट मिलता है तो उसको वहीं पे स्क्रिबल कर लें या स्टिकी नोट ऐड कर लें तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा, रादर देन कि आप 2 या 3 सोर्सेज रखें अपने एंड में, जो कि रिविजन के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आता है, ये तो मैंने जो आपको बताया वो स्ट्रैटेजी मोस्टली स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड है। सिमिलर स्ट्रैटेजी हम करंट अफेयर्स के लिए भी यूज़ करेंगे। करंट अफेयर्स में जो मैंने पर्सनली यूज़ किया था, मैंने सिर्फ मंथली मैगजीन्स को ही फॉलो किया था। तो मैंने विजन IAS की मंथली मैगजीन्स और उसको सप्लीमेंट किया था PT 365 के साथ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर्स के नोट्स बनाना भी प्रेफर करते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप न्यूज़पेपर के नोट्स बना के उस तरीके से करंट अफेयर्स करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अगेन करंट अफेयर्स में भी इम्पॉर्टेंट है कि जो भी जिस मंथ का अगर आपने 1 मंथ की मैगजीन फिनिश कर ली है या फिर 1 मंथ का आपका न्यूज़पेपर के नोट्स रेडी हैं तो आप उनको रिवाइज़ करें और उसके बाद उसका एक टेस्ट पेपर अटैम्प्ट करें। वो टेस्ट पेपर आप फ्रीली, काफ़ी सारे मटेरियल या टेस्ट पेपर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उन रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप किसी टेस्ट सीरीज़ में एनरोल कर सकते हैं जिसमें डेडिकेटेड टेस्ट रहते हैं मंथली, तो उस तरीके से आप अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है वो है एनालिसिस ऑफ द पास्ट ईयर पेपर्स, क्योंकि काफ़ी टाइम हम देखते हैं कि जो कोचिंग इंडस्ट्री में जिस तरीके के टेस्ट पेपर्स रहते हैं या फिर मटेरियल जो मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल है वो काफ़ी ओवरवेलमिंग हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। अननेसेसरी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है जो कि UPSC के डिमांड से इतना अलाइन नहीं करता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ सिर्फ टेस्ट सीरीज़ पे ना फोकस करें, बिकॉज आपको इंस्टीट्यूशन के टेस्ट को इम्प्रोवाइज़ नहीं करना है अपने स्कोर को, बल्कि UPSC में किस तरीके से आप अपने स्कोर को इम्प्रूव करें उस पर फोकस रखना है। तो पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करने का ये तरीका जो मैंने फॉलो किया वो ये था कि आप एक जो UPSC की वेबसाइट आती है उस पे जो पास्ट ईयर पेपर्स हैं वहाँ से उन पेपर्स को डाउनलोड करें और उनका एक प्रिंट आउट निकाल लें जो ओरिजिनल पेपर्स रहते हैं। उसके बाद आप बैकवर्ड्स स्टार्ट करें। तो मेरे ओपिनियन में अगर आप 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या 23 के लिए तो आप 1 साल पीछे से स्टार्ट करें, 21 से 2019 18 में जाएं और उस तरीके से ये देखें कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारे ऑप्शंस जो उसमें दिए हैं उनका क्या रेलेवेंस है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो उसका एक क्विक गूगल सर्च करके उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करें और उस इन्फॉर्मेशन को आप उसी जो आपने पेपर डाउनलोड करा है उसके एडजेसेंट ही कहीं पे लिख लें या नोट कर लें। तो वो एक तरीके से जितनी बार आप उन पेपर्स को रिवाइज़ करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप साथ साथ रिवाइज़ करेंगे। कई बार हमने देखा है कि UPSC अपने थीम्स को रिपीट करता है। स्पेसिफिक क्वेश्चन का रिपीट होना तो काफ़ी रेयर है, लेकिन थीम्स डेफिनेटली रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में। अगर मैं एग्जाम्पल से स्टेट करूं तो जैसे आपका पॉलिटी का पोर्शन है तो उसमें क्वेश्चंस फंडामेंटल राइट से या फिर क्वेश्चंस रिलेटेड टू आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ या फिर पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, पार्लियामेंट, इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं उनसे हर साल क्वेश्चंस आते हैं और एक थीम बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं।
तो आपको ध्यान रखना है कि आप उस थीम को समझ पा रहे हैं और उसे ग्रास्प करने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं साइंस एंड टेक में एग्जाम्पल दूँ तो जैसे कि ग्रेविटेशनल वेव्स है, तो काफ़ी पिछले 3-4 सालों में यूपीएससी ने उस एरिया पे फोकस किया है। तो अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स एनालाइज करेंगे तो वो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग में भी हेल्प करेगा कि कौन सी न्यूज़ पढ़नी है और कौन सी न्यूज़ इग्नोर करनी है। तो इस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं थ्रू द एनालिसिस ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स। नेक्स्ट ये है कि जब आपने अपनी स्टैटिक करंट अफेयर्स पोर्शन को एनालाइज कर लिया है, उसके बाद आपने अपने पास्ट ईयर पेपर्स भी देख लिए हैं, तो एक लास्ट लेग ऑफ प्रिपरेशन आता है जो कि टूवर्ड्स द एंड ऑफ द एग्जाम फेज आता है, जब आपका एग्ज़ाम 1 से 2 महीने दूर है। तो उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ फुल लेंथ पेपर्स को सॉल्व करें। मैंने इस अटैम्प्ट में ऑलमोस्ट 10 to 15 फुल लेंथ टेस्ट यूज़ करे थे। इसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे जो सेकंड अटैम्प्ट था उसमें मैंने अप्रॉक्सीमेटली 40 फुल लेंथ पेपर्स सॉल्व करे। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फुल लेंथ पेपर्स सॉल्व करना भी इतना यूज़फुल नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस कि आप उन पेपर्स को एनालाइज करें। यही मिस्टेक थी मेरे सेकंड अटैम्प्ट में कि मैं सिर्फ नॉन स्टॉप पेपर्स माइंडलेसली सॉल्व करे जा रही थी, बट कभी इस बात पे फोकस नहीं किया कि वो पेपर्स एनालाइज नहीं हो रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट में मेरे स्कोर्स 90 to 100 के बीच में रहते थे, बट फोकस कभी ये नहीं था कि डिस्पाइट कि 40 पेपर्स आपने अटैम्प्ट कर लिए हैं और तभी भी स्कोर 100 से ऊपर नहीं जा रहा है, तो उसका रीज़न क्या है। मुझे हमेशा से ये लगता था कि वो एक नॉलेज डेफिसिट है, जो कि सच नहीं था, बिकॉज यूपीएससी एग्ज़ाम में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है, तो इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि किसी को वो सब कुछ पता हो। इम्पॉर्टेंट है कि आप पेपर्स को एनालाइज करें, सर्टेन लॉजिकल गेस वर्क पे काम करें, तो उस तरीके से आप अपने लिमिटेड नॉलेज को भी बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप फुल लेंथ पेपर्स सॉल्व करें, अगेन सिमिलर ही स्ट्रैटेजी रहेगी जैसे आपने स्टैटिक पेपर्स में किया कि आप एक टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करें। उस टेस्ट पेपर को सॉल्व करने के बाद 2 से 3 घंटे पेपर के साथ बैठें और क्वेश्चंस को एनालाइज करें कि कौन सा क्वेश्चन बुक से डायरेक्टली था जो गलत नहीं होना चाहिए था और वो गलत हुआ है। काफ़ी बार जब मैं खुद भी प्रिपरेशन में थी या अभी मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, तो बहुत स्टैंडर्ड सोर्सेस से जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत से है या फिर स्पेक्ट्रम से क्वेश्चंस हैं, वो भी हम काफ़ी बार उन इजी क्वेश्चंस को भी गलत करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप पेपर्स एनालाइज कर रहे हैं तो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन के पीछे ना भागें। टेस्ट पेपर्स में यही इंपॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चंस आप सही कर सकते थे, जो भी चीज़ आपने पहले पढ़ी थी और वो चीज़ आपके माइंड में थी या फिर आपके नॉलेज में थी, और उस तरीके के अगर क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो उन पे आप ज़्यादा फोकस करें, तो वो आपके स्कोर्स को इम्प्रूव करने में ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये तो अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया वो मोस्टली जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है। प्रीलिम्स का एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है जीएस पेपर 2, जो कि सीसैट का पेपर है। इन द लास्ट 2 to 3 years हमने देखा है कि डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ दैट पेपर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, इनफैक्ट पीपल फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या फिर जिन्होंने मैथ्स भी पढ़ा है, उन लोगों के लिए भी उस पेपर को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो इसमें मेरी एडवाइस, मैं मोस्टली उन लोगों को अभी फोकस कर रही हूँ जो नॉन मैथ बैकग्राउंड से आते हैं, जिन्होंने मेरी तरह क्लास 10th के बाद शायद मैथ्स नहीं पढ़ा है। तो इम्पॉर्टेंट है कि जब आप अपनी प्रिपरेशन GS1 के लिए कर रहे हैं तो साथ साथ आप कुछ टाइम सीसैट पेपर के लिए भी डेडिकेट करें। आप आइडेंटिफाई करें कि कौन से कॉमन एरियाज़ हैं जिनसे यूपीएससी क्वांट में क्वेश्चंस पूछ रहा है, जैसे कि नंबर सिस्टम है, प्रॉफिट लॉस है, एवरेजेस है, स्पीड टाइम डिस्टेंस है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करें। मैंने उसके लिए RS अग्रवाल की एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एक जो बुक आती है उसको यूज़ किया था। ज़रूरी नहीं कि आप वो बुक यूज़ करें, आप कोई और बुक भी रेफ़र कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको उसमें से भी सारे क्वेश्चंस को करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस करें जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। कुछ बेसिक सिंपल फार्मूलाज जो हैं उनको आप वहाँ से देख लें। तो उस तरीके से आप अपनी सीसैट की प्रिपरेशन करें। अगेन सीसैट में ये बात फिर से इम्पॉर्टेंट है कि जब आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आपने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो आप कुछ क्वेश्चंस को एक टाइम बाउंड मैनर में टेस्ट की तरह भी प्रैक्टिस करें, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट कई बार इशू हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। मेरे लिए भी इशू था कि काफ़ी बार एक लंबा मेथड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो पेपर आप टाइम से फिनिश नहीं कर सकते, एंड सीसैट में भी एक ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है। तो उस तरीके से आप अपने क्वांट की जो प्रैक्टिस है उसको कर सकते हैं। सीसैट में अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करें, उनको सॉल्व करें। मेरा मानना है कि सीसैट में तो आपको इन एंड आउट सारे ही एटलीस्ट क्वांट के क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लेने चाहिए। इसके लिए आपको स्पेसिफिकली कोई डिफरेंट क्लास या फिर मटेरियल रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो आप सिंपली क्वेश्चन को यूट्यूब पे या गूगल पे टाइप करें, उसका सल्यूशन आपको फ्रीली अवेलेबल है, तो आप वहाँ से उस सल्यूशन को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इनफैक्ट जितनी बार आप उसको दोबारा देखना चाहते हैं आप उसको उतनी बार भी फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप अपने क्वांट के जो टॉपिक्स हैं उनको, कुछ बेसिक टॉपिक्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम में जाने से पहले। दूसरा एक एस्पेक्ट है कॉम्प्रीहेंशन का। ये हमने अभी रिसेंटली ट्रेंड में देखा है कि डिस्पाइट कि आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, आंसर की के आंसर्स काफ़ी बार मैच नहीं करते हैं जो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग रहता है अमंग द स्टूडेंट्स या फिर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आंसर की आते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप क्वांट वाले एरिया पे फोकस करें। कॉम्प्रीहेंशन के भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बट अगर आप क्वांट को स्ट्रेंथन कर लेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि मोर और लेस वहाँ पे डेफिनेट आंसर रहता है। तो उस तरीके से आप अपने सीसैट पेपर को एनालाइज करें और उसमें उसके प्रिपरेशन करें। सीसैट और जीएस जब एक बार आपने प्रिपेयर कर लिया है, आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है, अभी हमें पता है कि 3 से 4 दिन में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, तो एक दूसरी इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो प्रीलिम्स के लिए है वो ये है कि आप 3 से 4 दिन एग्ज़ाम के पहले और एग्ज़ाम के दिन किस तरीके का माइंडसेट रखते हैं। मेरे साथ ये सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था कि बहुत ज़्यादा खुद के लिए एक प्रेशर क्रिएट कर लिया था, एक एंग्जाइटी डेवलप कर ली थी एग्ज़ाम के लिए, और उस वजह से एग्ज़ाम हॉल में परफॉर्मेंस उतने ऑप्टिमम लेवल पे नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। तो पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो अपने आप को काम रखें, एक कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में जाएं। 2 से 3 दिन पहले इम्पॉर्टेंट है कि जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहती है, मोस्टली हिस्ट्री, पॉलिटी में हम देखते हैं कि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो फैक्ट बेस्ड होते हैं, तो रिवीजन पे फोकस करें कि आप उन एरियाज़ को रिवाइज़ कर रहे हैं। इट इज़ वेरी नॉर्मल और नेचुरल कि लास्ट के 3-4 दिन में एंग्जाइटी होती है तो उतना ज़्यादा पढ़ने का मन भी नहीं करता, तो उसमें आपको प्रेशराइज़ नहीं करना है खुद को। जितना भी आप इफ़ेक्टिवली पढ़ सकते हैं और रिवाइज़ कर सकते हैं उतना आप रिवाइज़ करें। अपनी हेल्थ का इम्पॉर्टेंट उसका ध्यान दें कि अच्छा खाएं, हाइड्रेटेड रहें, स्पेशली जो लोग दिल्ली और उसके एडजेसेंट एरियाज़ में एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर रहे हैं। तो ये अगर आप बातें ध्यान रखेंगे तो वो आपको एग्ज़ाम के दिन एक काम माइंडसेट के साथ जाने में हेल्प करेगा। जब आप एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो आप अपने सेंटर पे मेक श्योर करें कि आप टाइम से थोड़ा पहले पहुंच जाएं। आई रिमेंबर इन माई सेकेंड अटैम्प्ट देयर वाज अ स्टूडेंट जो लेट हो गई थी और शी वाज लेट बाय 5 मिनट्स, लेकिन उनको एग्ज़ाम देना अलाउ नहीं किया था। तो प्लीज़ ये मेरा कॉमन मैसेज होगा सबको कि इस तरीके की कोई मिस्टेक ना करें। अगर फीजिबल हो तो आप एक दिन पहले जाके अपना सेंटर चेक कर लें, अगर ना भी हो तो एटलीस्ट ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम आप टाइम से पहले निकल जाएं और अपना एडमिट कार्ड या फिर आईडी कार्ड जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको साथ में कैरी करें, बिकॉज़ ये अननेसेसरी पैनिक एंड एंग्जाइटी क्रिएट करता है। जब आप सेंटर पे पहुँचें तो खुद पे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ बिलीफ रखें कि जो भी आपने प्रिपेयर किया है वो ऑप्टिमम है और उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते थे। आपने अपने 100% एफर्ट्स दिए हैं और उस बिलीफ के साथ एक ओपन माइंड के साथ एग्ज़ाम में जाएं, बिकॉज प्रीलिम्स में हमने देखा है कि काफ़ी बार क्वेश्चंस बहुत लॉजिकल गेसवर्क से भी सॉल्व हो सकते हैं, बट वो तभी पॉसिबल होगा जब आप एक काम माइंड रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पेपर को जज ना करें, बिकॉज 4 डिफरेंट सेट्स आते हैं यूपीएससी में। कई बार ऐसा होता है कि जो एरिया आपका वीक है, जैसे मेरे लिए इकोनॉमी थोड़ा वीक पोर्शन था, तो अगर उस तरीके के अगर कोई वीक पोर्शन है और उसके फर्स्ट 25 क्वेश्चंस आपके उस टॉपिक से हैं तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट 26th क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वहाँ से भी डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप 100th क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है कि आपको 1 से लेके 100 तक ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उस तरीके से आप अपने पेपर को अप्रोच करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पेपर में है कि हर क्वेश्चन को उतना ही एडिक्वेट टाइम दें। ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन में 10 मिनट स्पेंड कर रहे हैं और दूसरे क्वेश्चन को सिर्फ 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। हर क्वेश्चन के मार्क्स सेम हैं, नेगेटिव मार्किंग भी सेम है, तो किसी भी बात को ईगो पे ना लें कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, मुझे इसका आंसर आना चाहिए था। अगर वहाँ पे नहीं रिकलेक्ट हो रहा है, नहीं याद आ रहा है, तो मूव ऑन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करें कि आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उससे आप ये होगा कि आप जो सिली एरर्स जिनको हम बोलते हैं, आप उस तरीके की गलतियों को एलिमिनेट कर पाएंगे। एक और चीज़ कि पेपर किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, तो उसमें मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि ऑलमोस्ट 3 राउंड्स में आप अपने पेपर को अटैम्प्ट करें। जो आपका फर्स्ट राउंड है उसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चंस जितने भी आपको श्योर आते हैं उनको करें। फॉर एनी नॉर्मल कैंडिडेट जो भी एग्ज़ाम में अपीयर कर रहा है उसका नंबर 30 से 40 के बीच में रेंज करता है।
तो वो 40 क्वेश्चंस जब आपने एक बार अटैम्प्ट कर लिए हैं, उसके बाद आप अपना एक सेकेंड राउंड स्टार्ट करें। सेकेंड राउंड्स में आप उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें जिसमें आप एटलीस्ट 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हैं, और जहाँ पे आप एक तरीके के लॉजिकल गेस वर्क करके एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुँच सकते हैं। लॉजिकल गेस वर्क जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसका मतलब ये है कि आप अननेसेसरीली किसी भी तुक्केबाजी को, जिसको हम बोलते हैं, उस तरीके की चीज़ें ना करें। जो भी आपने पढ़ा है, कुछ हिंट्स यूज़ करके जो वहाँ पे दिया हुआ है, उस इन्फॉर्मेशन को एसिमुलेट करके एक आंसर को डिराइव करने की कोशिश करें। और लास्ट होगा कि एक थर्ड राउंड में जिसमें आपको लग रहा है कि प्रॉबेबली आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए हैं, तो वहाँ पे अगर 3 ऑप्शंस हैं और आपको लगता है कि आपने काफ़ी कम क्वेश्चंस अटैम्प्ट की हैं, लेट्स से आप सिर्फ 70 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाए हैं, तो उस तरीके में अगर आप 4 से 5 क्वेश्चंस अगर और अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आप वैसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कितने क्वेश्चंस एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने चाहिए। तो इसका डिसीजन आई थिंक हर इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है। काफ़ी लोग 90 to 95 क्वेश्चंस भी करते हैं। मेरा रेंज हमेशा रहता था कि 85 to 90 के बीच में मैं क्वेश्चंस अटैम्प्ट करूं। आप इस डिसीजन पे कैसे पहुंचेंगे वो तब होगा जब आप अपने फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स जिनको आप सॉल्व कर रहे हैं, आप उसमें पहले स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर लें कि आपके कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने पे आपका किस तरीके का स्कोर बन रहा है। अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने से बेटर पॉजिटिव नेट स्कोर आ रहा है तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें। अगर आपके जो एक्यूरेसी है वो हाई है, तो अगर आप 80 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करते हैं लेकिन आप 60 क्वेश्चंस अगर वहाँ पे सही कर पा रहे हैं तो आप 80 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो एक सेट नंबर दिमाग में लेके एग्ज़ाम में ना जाएं कि मुझे इतने ही क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। ये डिसीजन आप एग्ज़ाम पेपर को देख के लें, और कट ऑफ का प्रिडिक्शन ना करें एग्ज़ाम हॉल के अंदर ये सोच के कि इस बार कट ऑफ ज़्यादा होगा, कम होगा, क्वेश्चंस ईजी हैं, डिफ़िकल्ट हैं। ये सारी बातें जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए उसके बाद भी की जा सकती हैं। तो एग्ज़ाम के 2 घंटे इस बात पे फोकस रखें कि ये टाइम सिर्फ आपका है और आपको अपना ऑप्टिमम बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। तो उससे मुझे लगता है कि आपका स्कोर इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात पेपर अटैम्प्ट करते समय वो ये है कि OMR शीट को आप किस तरीके से मार्क करते हैं। इन माई सेकेंड अटैम्प्ट ये गलती हुई थी कि मैंने एक बबल अपना गलत मार्क कर दिया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट पैनिक मैंने उसके एडजेसेंट जो नेक्स्ट बबल था सब्सिक्वेंट क्वेश्चन का उसको भी गलत मार्क कर दिया था। सो दैट कॉस्टेड मी 2 क्वेश्चंस। तो इस तरीके की गलती ना करें। आफ्टर एवरी 15 to 20 क्वेश्चंस या फिर लेट्स से 30 क्वेश्चंस कोशिश करें कि आप OMR भी साथ साथ भरते रहें, एंड के लिए वेट ना करें। बिकॉज कई बार अगर आप OMR कोई क्वेश्चन आपने मिस किया है और आप OMR को फ्लो में भर रहे हैं तो हो सकता है कि आप लाइन से 3-4 क्वेश्चंस गलत फिल कर दें और आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप उसको अंडू कर सकें या फिर इरेज कर सकें। तो इस तरीके की गलती अगर आप अवॉइड करेंगे तो वो आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने में डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। वेलकम टू लुकमान IAS. Study general studies with Lukman IAS for building comprehensive knowledge. GS paper 2 and 4 will be taken by S. Ansari and other papers will be covered by renowned faculties. Live classes are as effective as offline classes. The classes are highly interactive in nature. Your doubts and queries will be addressed and there will be dictation of notes. In the last 10 years, Lukman IAS has set up a niche in the field of UPSC guidance. एक लास्ट लाइन जो मैं प्रीलिम्स के लिए सभी को बोलना चाहूँगी वो इम्पॉर्टेंट है कि आप जितने भी सोर्सेज हैं उनको अपने प्रीलिम्स के लिए लिमिट करें। जो सोर्सेज मैंने बताए हैं आप उन्हें भी रेफ़र कर सकते हैं, या फिर अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस अपने बैकग्राउंड को देखते हुए कोई डिफरेंट सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। बट जो भी सोर्स आप पिक करें उसको लिमिटेड रखें और उसके मल्टीपल रिविजन्स करें। मल्टीपल से मेरा मतलब है एटलीस्ट 5 to 6 रिविजन्स बिफोर आप अपने एक्चुअल एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं। और कुछ एरियाज़ हैं जिनके आप शॉर्ट नोट्स या फिर एक 1 पेजर्स बना सकते हैं जो कि आप एग्ज़ाम से पहले दिन रिवाइज़ कर सकते हैं। तो उस तरीके की स्ट्रैटेजी आप प्रीलिम्स में यूज़ करेंगे तो वो इम्पॉर्टेंट या इफ़ेक्टिव रहेगा। दूसरा एक और चीज़ कि अगर आपके पास्ट फेलियर्स हैं तो उससे डरे ना, बिकॉज प्रीलिम्स आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक अटैम्प्ट में क्लियर कर पाते हैं और नेक्स्ट अटैम्प्ट में शायद नहीं क्लियर होता है। तो उस तरीके की फेलियर्स अगर आपके साथ हैं तो प्लीज़ डीमोटिवेट ना हो, अपने फेलियर्स में एनालाइज करने की कोशिश करें, एक इंट्रोस्पेक्शन करें कि क्या प्रॉब्लम्स थी,
अपने सीनियर्स अगर आप किसी को जानते हैं तो उनसे डिस्कस कर सकते हैं, कोई मेंटर आपका हो तो उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं। और अगर कोई ना भी हो तो बहुत सारे वीडियोस प्रीवियसली भी अवेलेबल हैं, आगे भी आएंगे, तो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं अपनी एक स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन करने में या फिर एक सेल्फ करेक्शन करने में। और अगर आप उसको इम्प्रूव करेंगे तो डेफिनेटली आई थिंक आप प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर सकते हैं। For all the people writing prelims on 5th of June, I wish you all the best, and I'm sure that if you keep a calm mind, you will be able to score a good marks and clear the cutoff and write the mains exam. All the best. Thank you.